Number 29. Question number 29. A 60-year-old man with a history of cigarette smoking and alcohol abuse develops a protruding centrally ulcerated mass in the oral cavity. The history for smoking and alcohol abuse. The history of smoking and alcohol abuse is a risk factor for squamous cell carcinoma. So this patient is suffering from squamous cell carcinoma, but what is the most common location? That is base of tongue. That is base of tongue. आप इसको गूगल भी कर लें. So it is base of tongue. Okay, endoscopy of a young male having low-grade fever, weight loss, episodic loose motion, right lower quadrant tenderness reveals thickening of terminal ileum, edema and marked narrowing of the lumen, and skip lesion, very important. This is skip lesion. ठीक है, एक थिकनिंग ऑफ टर्मिनल आइलियम एंड सेकंड स्किप लीजन. Which one of the most following statement is typical of this condition? This is Crohn's disease. Skip lesion is a characteristic feature of Crohn's disease. तो Crohn's disease में क्या क्या होता है? Crohn's disease में होता है it can affect any portion of the gastrointestinal tract, but proximal jejunum is the most common side. नहीं, पहली statement ठीक है that it can affect almost any portion of gastrointestinal tract, but most commonly it affects ileum. Most commonly it affects terminal ileum. So first is wrong. Inflammation and ulceration limited to mucosa and submucosa, that is a feature of ulcerative colitis. इसमें तो नाइफ लाइक फिशर्स बनते हैं एंड थ्रू पेनिट्रेशन होती है. पैथोमा पे लिखा हुआ है ट्रांसम्यूरल वो होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है. Full thickness inflammation. It is benign self-limited disorder with no complicated sequelae. No, that is शिद्दत से झूठ बोला गया. ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी तो रख के झूठ बोला गया है. इस ऐसा कुछ नहीं होता. It can cause fistula formation between the loops of affected bowel. Yes, it can cause. Additional typical findings include crypt abscesses and pseudopolyps. These are the feature of ulcerative colitis. Crohn's disease के अंदर cobblestone mucosa, creeping fat, strictures and string sign on imaging होता है. This is written on pathoma. तो option D is the correct option. नेक्स्ट आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली प्रिकर्सर लीजन फॉर एडिनोकार्सिनोमा. एडिनोकार्सिनोमा की मोस्ट लाइकली है दैट इज विलस एडिमेटस पोलिप. क्वेश्चन नंबर 32. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कलमनर मेटाप्लेजिया दैट इज बैरेट्स इसोफेगस, नन अदर देन गर्ड. उसके अलावा कुछ नहीं होता, सिर्फ गर्ड होता है. गर्ड एंड बैरेट इसोफेगस इन दोनों का चोली दामन का साथ है. क्वेश्चन नंबर 33. ए 5-year-old डिबिलिटेटेड चाइल्ड. डिबिलिटेटेड का मतलब होता है जो फिजिकली बहुत वीक हो, जो बहुत कमज़ोर हो. फ्रॉम ए प्रीवियस सीवियर अटैक ऑफ मीजल इज ब्रॉट टू ए पीडियाट्रिक clinic with a mild ulceration of oral mucosa. The ulcers are mildly painful, covered by easily removable white curd. What is the most likely cause? The most likely cause is Candida albicans. जो ये वाइट कर्ड के फीचर्स हैं, कैंडिडा अल्बैकन आमतौर पे आपको पता ही है जो सी अल्बैकन है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड थ्रश. ये होता है उन पेशेंट्स के अंदर जो इम्यूनोडेफिशिएंट हो गए हैं. तो चाइल्ड डेबिलिटेटेड है, ऑलरेडी बहुत वीक है, उससे पहले उसको सीवियर अटैक ऑफ मीजल हुआ है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा सुप्रेस हो गई होगी. तो आफ्टरवर्ड्स उसको सी अल्बैकन जो कि ओरल कैविटी के नॉर्मल फ्लोरा का पोर्शन है, तो नॉर्मली सी अल्बैकन ओरल कैविटी के नॉर्मल फ्लोरा में होता है. तो जैसे ही इम्यूनिटी सुप्रेस हुई दैट्स द पॉइंट, उस वक्त सी अल्बैकन ने अपनी स्ट्रेंथ रीगेन की और इन्फेक्शन स्ट्रांग हो गया. ठीक है, तो सी अल्बैकन का करेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कम हुई होती है उनके अंदर होता है. तो हमारे पास एक चाइल्ड है जो फिजिकली डेबिलिटेटेड है, फिजिकली वीक है, मेल नरिश्ड है और उसको रिसेंटली एक सीवियर अटैक ऑफ मीजल हुआ है. सो दिस इज द आइडियल कैंडिडेट फॉर सी अल्बैकन. तो उसके अंदर आपको वाइट कर्ड और अल्सरेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा मिल रही है. सो दिस इज सी अल्बैकन्स. Heaped up margins are characteristic features of malignant ulcer.
ये जो आपका पोर्शन है पीयूडी का, पीयूडी के पोर्शन में बिग रॉबिन्स में उन्होंने एक डिफरेंस दिया हुआ है, एक टेबल बना के, 9th एडिशन पे टेबल था, 10th एडिशन पे है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 9th एडिशन पे पीयूडी के में एक पोर्शन दिया हुआ है अल्सर्स का। तो वहाँ पे ये डिफरेंस लिखा हुआ है कि हीप्ड अप मार्जिन्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैलिग्नेंट अल्सर्स। उसके बाद है इसोफेजियल कॉजेज ऑफ हेमेटोमेसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट रिफ्लक्स डिजीज, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, यस इसमें हेमेटोमेसिस होती है, एडिनोकार्सिनोमा, यस इट इज़ पॉसिबल। हियाटल हर्निया, हियाटल हर्निया में हेमेटोमेसिस के कोई चांसेस नहीं होते। हीमोफीलिया, यस हीमोफीलिया में हो सकती है, ऑप्शन इज नन ऑफ देम, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। malignant transformation of peptic ulcer, peptic ulcer की malignant transformation is rare, it is rare। अच्छा ये ना MCQ थोड़ा अजीब सा है, पेप्टिक अल्सर ना स्पेसिफाइड नहीं है यहाँ पे। पेप्टिक अल्सर डिजीज दो, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्सर। जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, PUD, it has two types of ulcer, there are duodenal ulcers and there are gastric ulcers। duodenal ulcers are always benign, duodenal ulcers are always benign, ठीक है benign। gastric ulcers you say कि these are always carcinomatous until and unless proven otherwise, ठीक है। तो gastric ulcers are almost always carcinomatous until and unless they are proven otherwise। तो गैस्ट्रिक अल्सर्स के बारे में आप ये कह सकते हो कि गैस्ट्रिक अगर PUD है और PUD में गैस्ट्रिक अल्सर है तो देर आर रिस्क्स, इट इज़ ऑलमोस्ट 100% मैलिग्नेंट अल्सर, ठीक है। लेकिन DU के बारे में आप ये नहीं कह सकते, DU इज़ ऑलमोस्ट, इट इज़ नेवर नेवर एवर जोन सा है मैलिग्नेंट अल्सर, ठीक है। सो हेयर वी हैव इज़ द मैलिग्नेंट अल्सर एंड हेयर वी हैव इज़ द बेनाइन अल्सर। तो ये जो क्वेश्चन है कि दैट मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ीद क्लियर अगर कर देते कि गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर, तो दैट वुड बी वेरी वेरी नाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो 100% का ऑप्शन है ना वो दूसरा ऑप्शन है, तो इसका मतलब लेट्स से अगर आपको कुछ नहीं पता और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जो गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं वो 100% मैलिग्नेंट है और जो पेप्टिक अल्सर्स हैं वो जो ड्यूडिनल अल्सर्स हैं वो कभी भी मैलिग्नेंट नहीं होते, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो यू कैन स्किप ऑल दीज फीचर्स, ठीक है। नो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी एक बात गलत है। 10%, 20%, 30% ये सवाल ही नहीं पैदा होता, ये दो एक्सट्रीम चीज़ें हैं। गैस्ट्रिक अल्सर हमेशा आप सस्पेक्ट करते हो कि ये मैलिग्नेंट होगा अनटिल एंड अनलेस प्रूवन अदरवाइज, और जो पेप्टिक जो ड्यूडिनल अल्सर है आप हमेशा ये कहते हो दैट इट इज़ अ बेनाइन अल्सर, ठीक है। इट इज़ ऑलमोस्ट नेवर मैलिग्नेंट, दिस इज द लाइन ऑफ पैथोमा दैट इट इज़ ऑलमोस्ट नेवर मैलिग्नेंट एंड इट इज़ वेरी एक्सट्रीमली रेयर कि ये मैलिग्नेंट हो, ठीक है। तो इस सिनेरियो के अंदर ये चारों के चारों ऑप्शंस जो से हैं वो स्किप हो जाते हैं एंड यू आर ओनली लेफ्ट विद रेयर, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा ए, लेकिन ये एक अजीब MCQ है। Skip lesions are characteristic feature of Crohn's disease, none other than Crohn's disease. Option A. Question number 38. Biopsy of fungating mass in the esophagus reveals adenocarcinoma. Which of the following condition is associated with this tumor? That is Barrett's esophagus. ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर क्या होता है? बैरेट्स इसोफेगस होती है। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 39. A 39-year-old male came to the OPD with on and off epigastric pain for last 6 months. Provisional diagnosis of peptic ulcer disease was made, okay, for confirmation of diagnosis on endoscopy. For confirmation of diagnosis on endoscopy, from where one should take biopsy? From where one should take biopsy? यार ये जो क्वेश्चन है ये ना बड़ा क्रिटिकल सा क्वेश्चन है, और उसकी रीज़न ये है कि आम तौर पे जो बिनाइन अल्सर्स हैं उनकी बायोप्सी नहीं की जाती, ठीक है। इसका PUD का जो डायग्नोसिस होता है दैट इज़ क्लिनिकल, सिम्टम्स की बेस के ऊपर
सिम्टम्स की बेस के ऊपर आप इसका एक डायग्नोस बनाते हो, क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है। आपने सिम्टम्स देखे और आपने डायग्नोस बनाया पीयूडी। आप एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हो, एंटीबायोटिक थेरेपी आप देते हो, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स देते हो और एंटीबायोटिक्स का आप चेक करते हो रिस्पॉन्स। एंटीबायोटिक्स ट्रिपल रजीम जोन सी है, अगर उसका रिस्पॉन्स आ जाए तो ठीक है, अगर रिस्पॉन्स ना आए तो उस वक्त आप बायोप्सी करते हो, ठीक है। और उस वक्त मोस्ट कॉमनली जो अल्सर होता है वो मलिग्नेंट की तरफ ही जा रहा होता है। तो बिनाइन अल्सर्स की आप बायोप्सी नहीं करते, ठीक है। इसलिए ड्यूडिनल अल्सर की तो कभी बायोप्सी, मतलब ड्यूडिनल अल्सर की बायोप्सी नहीं होगी। गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन पे कोई अल्सर आमतौर पे होता नहीं, आमतौर पे या वो लेसर कर्वेचर पे होते हैं या फिर वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में होते हैं, ठीक है। या तो वो लेसर कर्वेचर पे होते हैं या वो जो सा है ड्यूडिनम के अंदर होते हैं, ठीक है। जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं वो होते हैं लेसर कर्वेचर पे, और जो ड्यूडिनल अल्सर होते हैं वो होते हैं इंटीरियर ड्यूडिनम पे या फिर पोस्टीरियर ड्यूडिनम पे। तो गैस्ट्रोड्यूडिनल जंक्शन का भी कोई तुक नहीं बनता। ग्रेटर कर्वेचर पे भी कोई अल्सर नहीं होता, जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं वो होते हैं लेसर कर्वेचर पे। और एंट्रम पे भी एज सच कोई अल्सर नहीं होता। जो एंट्रम है ना, ये साइट होती है एच पाइलोराई की, ठीक है। जो एंट्रम है, दिस इज द साइट फॉर द इन्फेक्शन ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, एच पाइलोराई की साइट है कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस अगर किसी को हुआ हो ड्यू टू एच पाइलोराई तो दैट इज़ मोस्ट कॉमनली लोकेटेड इन एंट्रम। और जो है हमारे पास बॉडी और फंडस, उसमें ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस होता है। तो गैस्ट्रिक एंट्रम भी इटसेल्फ अल्सर्स के मामले में नहीं आती, ठीक है। तो बचा हमारे पास आता है गैस्ट्रिक अल्सर जो कि लेसर कर्वेचर पे होगा। तो जब भी आप पीयूडी के पेशेंट में बायोप्सी करते हो तो वो बायोप्सी आप मोस्ट कॉमनली करोगे, मतलब हमेशा करोगे उस अल्सर की जिसको ट्रिपल रजीम के ऊपर जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब फ़र्क नहीं पड़ा तो अब आप देखोगे कि ये अल्सर क्यों एंटीबायोटिक्स को और या फिर क्यों जो ट्रिपल रजीम चल रही है उसको रेजिस्ट कर रहा है। तो दैट इज़ मोस्ट लाइकली गैस्ट्रिक अल्सर। ये अल्सर लेसर कर्वेचर पे होगा, जहाँ पे भी ये होगा इसको आपने बायोप्सी कर लेना है, ठीक है। लेसर कर्वेचर पे मोस्ट कॉमनली आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपने इसको बायोप्सी कर लेना। लेकिन यहाँ पे ये एक अजीब सा एमसीक्यू था, इसलिए मुझे ना स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस को एक्सक्लूड करना पड़ा कि ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं। यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर डायरेक्ट आंसर बन नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऑप्शंस को बारी बारी एक्सक्लूड किया है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज गैस्ट्रिक अल्सर, ऑप्शन बी, नॉट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ड्यूडिनल अल्सर तो बेनाइन होते हैं, बेनाइन अल्सर को आप बायोप्सी नहीं करते, ठीक है। और बनाना अल्सर आप ट्रिपल रजीम दोगे वो ठीक हो जाएगा, वो इतनी चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Question number 40. The most frequent esophageal malignancy is squamous cell carcinoma. This is the most frequent, option E. Question number 41. A 60-year-old female present with 3-month history of intermittent burning substernal and retrosternal pain radiating to the neck. The burning is usually quickly relieved by antacid. Antacid लेने से burning relief हो जाती है, ठीक है। There is no relationship of these symptoms to exercise or exertion. Which of the following must be considered in the differential diagnosis of this patient? एक ऐसी पेशेंट जिसको इंटरमिटेंट बर्निंग पेन होती है, रेट्रोस्टर्नल और पेन रेडिएट करती है नेक की तरफ, सो आप पीयूडी का सोच सकते हो या फिर आप एसिड रिफ्लक्स का सोच सकते हो, ठीक है। पीयूडी या एसिड रिफ्लक्स, बाकी सारे तो एवं ही हैं। जो पैनिक डिसऑर्डर है वो भी और ही होता है, कार्सिनोमा में जिस तरह के सिम्टम्स नहीं आते। बाकी रह गया मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के अंदर डायस्थेसिस होती है, डायस्थेसिस मतलब पसीने छूट जाते हैं, वॉमिटिंग होती है और जो सा है पैरासिम्पथेटिक सिम्टम्स आ रही होती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी, और वो एंटासिड खाने से तो बिल्कुल नहीं रिलीव होती, तो ये मायोकार्डियल इन्फॉक्शन भी नहीं होगा। जो दो टक्कर की चीज़ें रह जाएंगी वो हैं एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ और पेप्टिक अल्सर डिजीज़। अब पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जौन सी है, इसके अंदर पेन नेक को रेडिएट नहीं करती, नंबर 1,
नंबर 1, इसमें पेन रेट्रोस्टर्नल या स्टर्नल नहीं होती, वो डिस्पेप्सिया का सिम्टम है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अंदर जो पेन होती है दैट इज़ एपिगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर के अंदर जो पेन होती है दैट इज़ एपिगैस्ट्रिक पेन। और यहाँ पे हमारे पास जिक्र किया गया है इंटरमिटेंट, सबस्टर्नल एंड रेट्रोस्टर्नल, ठीक है। और ये पेन नेक की तरफ रेडिएट नहीं करती, पीयूडी की पेन, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, तो पहला पॉइंट कि पेन पीयूडी की होती है एपिगैस्ट्रिक, और दूसरा पॉइंट ये है कि पेन नेक की तरफ रेडिएट नहीं करती पीयूडी की, तो इस वजह से पीयूडी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर है एसिड रिफ्लक्स डिजीज़। Question number 42. Which salivary gland is most frequent site for the tumor involvement? This is parotid gland। ये पहले भी आंसर क्वेश्चन आ गया हुआ है।